नीट का रिजल्ट आ गया यार। झूठ बोलो। रैंक नंबर तो देखो, प्रकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। वाह यार। बट देन द नेक्स्ट न्यूज सेज कि ये टैलेंट से भी पढ़ा है। टॉपर है भाई, 2-3 कोचिंग ले लिया होगा, 2 तो सही बात है। राइट। सही बात है। बट देन ये अगेन मेदांतु से भी पढ़ा यार। दिया है कितनी कोचिंग से पढ़ लिया ये गड़बड़ है बाबा। और नेक्स्ट इंटरव्यू में तो ये कह रहा है ये माइजू से पढ़ा है। 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट। व्हाट डू यू थिंक इज द रियलिटी? क्या ये चारों कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है? क्या 4 of these coaching institutes are responsible for him being rank 1? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Let's dive into this video. Hi everyone, I'm Dr. Kanika And I'm Dr. Shivang and welcome back to Dr. Duo. So as soon as the results are announced, this is a very common sight to see the topper giving interviews in various of the coachings, and in each of the coaching he says that he has used that resource for his success. Well, do you know the fact? हर टॉपर या कोई एक या ज्यादा से समझ लो 2 कोचिंग यूज करता होगा, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हर जगह अपना इंटरव्यू दे देता है? मतलब जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब में वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं एंड ऑल्सो थैंकिंग देम फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देम टू बी व्हाटएवर द रैंक दे हैव। कुछ भी। And you know what? A lot of coaching institutes actually buy students by giving them gifts, money, helping their family, or whatsoever you can say. They give that to the students, and for that, they're ready to give interview and also credit to those respective coaching institutes. Because you all know, we all see कि किस coaching institute से ज़्यादा toppers आ रहे हैं, हम उसी में ही पढ़ेंगे. So this is how the business works. This is how the coaching institutes run themselves. And also in PG, what coachings do is कि मान लो कोई नया कैंडिडेट आया है and first year में he had tried some coaching, उसको नहीं समझ में आया, he switched it, and second year से लेकर पूरे internship तक he has been using some other coaching. But जो उसने फर्स्ट ईयर में भी कुछ मंथ्स के लिए ट्रायल के लिए भी लिया होगा ना, that coaching will also take credit for his selection if that candidate gets selected. तो यार ये बहुत बड़ा गेम होता है ये. I'm sure you all cannot understand it. It's very difficult to dive inside and actually understand that thing. You must have seen a lot of times it is being showed on TV also कि some coaching institutes, obviously we will not take the names, are giving their toppers BMW, Audi. This has become a trend now. So we are not saying that you shouldn't give it to your toppers, but the point here is you shouldn't buy toppers from other coaching institutes. And here I cannot even blame the coaching institute itself. Obviously it's about the student. वो student का भी अपना होता है कि they also go towards the money aspect. Well, what moral can you derive from here? See, whatever is being practiced, let's leave that aside and actually derive something from it. So talking about moral is what we have been talking always. That is, never go onto the words or whatever you see it in the interview of toppers. In reality, जो भी हमने आपको बताया ऐसा नहीं है कि वो 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट से 6. Sometimes yes, there can be moments like एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने पूरे नोट्स बनाए, एक का उन्होंने कुछ टेस्ट सीरीज ले ली, है ना? तो ये हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है, 1-2 टेस्ट सीरीज ले ली. बट गिविंग लाइक द होल क्रेडिट जैसे वो इंटरव्यूज में देते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स. And another thing, even if some topper has studied completely from one coaching, it is not necessary that the same thing may work for you. Well, let me tell you something. See, all the coachings are good यार. See, अगर कोई एक कोचिंग एक लेवल पे पहुंची है और उसका नेम है, then certainly there is a reason. I am sure उस कोचिंग ने बहुत सारे हजारों लाखों सेलेक्शंस दिए हैं. 2-3 फिगर ऊपर नीचे होने से वो कोचिंग अच्छी या बुरी नहीं हो जाती है. सेकेंड थिंग, इट्स अबाउट यू. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है. इट्स नॉट कि यार अगर मैंने सो कोचिंग सूट किया तो वो इसको भी सूट करेगा, या जो इसने किया वो आपको भी सूट करेगा. वेल, दैट्स नॉट द केस एट ऑल. Definitely. And we have always been telling you that you people have to follow just one source. Believe us guys, we both have been through all of this and we know कि एक source follow करने से कितना benefit मिलता है. एक, you don't have burden of so many books. जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करोगे उतनी नोट्स बनेंगे, उतनी बुक्स आएंगी, सब कुछ होगा. सो इफ यू जस्ट डू वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू डू नॉट हैव दिस बर्डन ऑफ सो मेनी थिंग्स टू कवर. एंड ऑल्सो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके तुम्हारी रिलायबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर भी इंक्रीज होता है. एंड उसके बाद यू एक्चुअली कंसंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज.
एंड अनदर थिंग इज यार, सी हर कोचिंग में ना कुछ लेक्चर्स फ्री होते हैं इनिशियली, ठीक है, या कुछ ट्रायल टाइम होता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट टेक दैट ना। एंड स्पेशली अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में तो तुम्हें फ्री लेक्चर्स आराम से मिल जाते हैं। जस्ट टेक इट एंड ट्राई टू सी कि आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। कि कुछ लोगों की आदत होती है उनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो कुछ कोचिंग ऐसी जो कि बहुत फास्ट पढ़ानी है, सो मे बी दैट कोचिंग विल नॉट सूट यू, राइट, बिकॉज आपको कम ही कम पढ़ना है, उससे आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। सो मे बी आप ऐसी कोचिंग की तरफ जाओगे दैट इज नॉट डाइविंग डीप इनसाइड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम बात के एकदम छोटे से छोटे का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई, एंड दे कैन प्रॉब्ली डिवोट दैट मच ऑफ टाइम, सो प्रॉब्ली उनके लिए वो कोचिंग बेस्ट है। बट इट्स नॉट दैट कि यार दिस कोचिंग इज बेटर देन दैट और दैट वन इज बेटर देन दैट। ट्रस्ट मी, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा अच्छा ज्यादा पढ़ सकते हो और आप एक कोचिंग को कितना ट्रस्ट करके कितना डीपली पढ़ सकते हो उसी को। इट्स बेस्ट कि आप उसी को बार बार रिवाइज करो, इंस्टेड कि आप एक बार खत्म करने के बाद एक दूसरे और तीसरे रिसोर्स में जंप कर जाओ। इफ आई टॉक अबाउट नीट पीजी, हार्डली 2.5 से 3 महीना बचा है आपके पास। इस समय हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आई थी कि यार मेरे फ्रेंड्स सो कोचिंग से पढ़ रहे हैं, क्या मैं इसका क्यू बैंक ले लूं, क्या मैं इसका टेस्ट सीरीज ले लूं। डेली मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं यार, जबकि हमने हर वीडियो में स्ट्रेस आउट किया है कि दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू इवन थिंक अबाउट इट, लीव अबाउट डूइंग इट। यार अब तो आपने पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी एक कोचिंग से पढ़ लिया है, 3 महीने में अगर आप कुछ नया रिसोर्स छूओगे तो आपको लगता है कि यू विल इवन गेट द जिस्ट ऑफ दैट। At times there are moments when your student, when your friend would actually come up to you and talk about a topic जो first of all won't be much important for NEET PG point of view, और मतलब बहुत rare टॉपिक होगा, एंड सपोज वो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, देन यू विल फील ओ शिट, मैंने तो ढंग से पढ़ा ही नहीं कुछ, या फिर मेरे को कुछ आता नहीं है, मतलब वो थॉट आने लग जाता है, which is just not right. See, don't fall into this trap of FOMO. Aim for that 80 to 90% questions जो सब में आ रहे होते हैं, and not for just 1% or 0.5% questions जो कि rarely 10 साल में एक बार आ रहा होता है। उसके पीछे भागोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो जो 90% आप सही करके आओगे उसी से सिलेक्शन होगा, and you'll get a good rank of that too. Completely trust the process, trust your source. So from the very beginning, if you have ever observed, I've always said that कि मैंने भारतीय कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया था, because I have been a strong follower of just joining one coaching institute and following that completely. And what thing which I loved the most was कि उनके notes, उनका सब कुछ बहुत crisp और high yielding होता था. Along with the regular classes, I was also a student of the TND and Vibe session. So all of that was a complete package for me because I could study everything which was very high yielding. And by this I would always like to say कि personally I am more of like smart work rather than hard work. That is कि मुझे ये नहीं होता कि यार मैं सब कुछ पढ़ लूँ, 100 तरह की जगह से पढ़ लूँ मैं। मुझे ये होता है कि अगर जैसे मेरा टारगेट है नीट पीजी क्रैक करना, तो मैं उतना पढ़ूँ कि मैं नीट पीजी में अच्छी रैंक ले आऊँ और अपनी चॉइस की ब्रांच पे ले आऊँ, which luckily I was able to do that. So that obviously gave me this help was obviously through my coaching institute, क्योंकि वो again smart work की तरफ ज्यादा थे कि high yielding previous year questions सब कुछ को माइंड में रख के उसी लेवल की पढ़ाई करवाते थे। What do you think, Shiva? On the contrary, मेरा थोड़ा अपोजिट था। If I talk about MBBS, तो उसमें मेरा नेचर था सब कुछ हर जगह से पढ़ना। Specifically not about coaching, but हाँ books. So like अगर एक टॉपिक है तो मैंने वो टॉपिक पता नहीं कितने बुक से पढ़ा होगा। Especially but for an MBBS, but for NEET PG, you were also like. Thankfully मुझे उस समय तक अक्ल आ गई because obviously with time I realized कि ये गलत हो रहा है। यार I'll just give you one very small example. प्रॉफ से पहले एक डायबिटीज मैंने पढ़ा हुआ था, so I had basically read it from Harrison, बट जब मैंने रिवाइज करने समय लिटरली जो आंसू आना होता है ना वो मेरे साथ हो गया था जस्ट अ नाइट बिफोर प्रॉफ, बिकॉज आई कुडंट रिवाइज। यार मेरे सामने मेरा टेबल पूरे किताबों से फैला हुआ था, मैंने ये टॉपिक इस बुक से पढ़ा एंड मैंने ये टॉपिक उस बुक से भी पढ़ा हुआ है। अब मैं रिवाइज किससे करूं यार, क्योंकि ये तो दिमाग में था ही नहीं कि किसमें बेटर दिया है, मैंने उसको कंसोलिडेट करके एक जगह नहीं किया था। बट इसी लेसन को लेते रहते पीजी में मैंने कम से कम एक सोर्स पे स्टिक किया, एंड लकली आई कुड आल्सो गेट माय ड्रीम ब्रांच इन माय ड्रीम कॉलेज। सो यार ये सब सीखे हुए लेसन से जो हार्ड वे से सीखे मैंने, जो हम आपको भी अभी बता रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेनेवर वी सी इंटरव्यूज, we are not blaming you. As a student, as an aspirant, we also used to watch so many interviews and we used to feel यार ये टॉपर्स 5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, वाओ क्या बात है। बट इन रियलिटी वो कोई 5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेते हैं। ऐसे होता है कि जैसे एक कोचिंग से मेन नोट्स बना लिया, फिर एक से टेस्ट का ले लिया, फिर एक का शायद कभी कोई ऑल इंडिया टेस्ट होता होगा, ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं वो एक अटेम्प्ट कर दिया होगा, फिर किसी से मतलब कुछ डायग्राम्स की कोचिंग ले ली होगी, तो वो कुछ वो दोज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेन इंपॉर्टेंस होता है कि तुम नोट्स का तुमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया है, एंड वो बाकी जो ऐड हो रही होती है यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज वी टोल्ड यू देयर इज अ हार्श ट्रुथ, harsh reality which is going back around. You don't have to follow it. Just trust whatever source you're studying and definitely you'll crack it. And even when you watch the interviews, learn the process.
ओके कि यार उसने क्या किया, जस्ट लर्न हाँ, learn that thing ना कि सामने वाला वो so determined, like learn about the sacrifices he made and get inspired from that. Don't get inspired from the coaching. See, there are many things to get inspired from, right? अब उसका schedule देखो, टाइम टेबल देखो, देखो यार वो अपनी रातें कितनी खराब किया है. Just learn कि वो सोया नहीं है रात भर. Just learn कि उसने बाकी सब कुछ compromise कर दिया. He didn't talk to his friends, he didn't go out to party. Learn those things. Those are the points you can actually grasp and implement it yourself. ये कोचिंग वाले फैक्टर पे लेकिन आप अटक जाते हो यार, आप बाकी सब हटा देते हो एंड वो कोचिंग वाले फैक्टर पे अटक जाते हो, जबकि थिंग शुड बी वाइस वर्सा. exactly. So we really hope that you understood the whole concept of what actually goes behind interview. So yeah, this is it for today's video. We hope that you like it. If you do, guys, do not forget to subscribe to our channel. We are putting in a lot of effort to have this community as the biggest Medico community ever. So your support will help us reach that level and also help us reach 300k by the end of this year. So thank you everyone. Keep sharing your love and subscribe to our channel. Let's make this channel the biggest channel ever because because of all fun. Bye guys. bye. Oh my god, do you know जिसने इस बारी रैंक 1 जिसकी आई है नीट में वो प्रकाश यूनिवर्सिटी से पढ़ा है. वाओ, व्हाट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. व्हाट, ये तो टैलेंट से भी पढ़ा है. ये नेक्स्ट न्यूज शोज की ये पार्टिया से भी पढ़ा है. इंटेलिजेंट लोग ना. बट यार ये तो नेक्स्ट न्यूज ये बता रही है कि ये पाइजू से भी पढ़ा है और ये पेदांतु से भी पढ़ा है. यू नो व्हाट, रिजल्ट्स आ गए यार. तो उससे मेरा क्या फायदा.